Go ahead, perform readability check. To all station, please perform readability check. Delhi Tower, Victor Tango, Romeo Kilo Delta. How do you read? Victor Tango Romeo Kilo Delta, reading you 5. How do you read? Victor Tango, Romeo Kilo Delta, reading you 5. नहीं, गलत, उल्टा. उल्टा. First, you need to tell reading you 5. Last, you need to tell Victor Tango Romeo Kilo Delta. ठीक है? Affirm, sir. ठीक है. See, that is the beauty of practice. If you want practice, you will think कि मुझे आता है. But where you are making exactly mistake, that will only you will get to know once you tell something. नहीं तो आपको लगेगा कि ये मुझे आ रहा है, जो कि एक्चुअल में आपको आ रहा होगा somehow, but you are not able to deliver it when time requires. जब चाहिए होगा उस टाइम पे मिस्टेक होता है. तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करो एंड डोंट escape from answering in the classroom. ठीक है, उससे बचने की कोशिश मत करो. ठीक है. Go ahead everyone, please. Delhi Control, Victor Tango, Bravo Charlie Delta. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Victor Tango Bravo Charlie Delta, Delhi Control. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Reading you 5. How do you read? I say again 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Victor Tango, Bravo Charlie Delta. Victor Tango Bravo Charlie Delta, Delhi Tower. Reading you 3. How do you read? Read you 5 10 5. Victor Tango, Bravo Charlie Delta. लेकिन मैंने तो बोला 3 और 3 पे हम प्रोसीड नहीं कर सकते. सपोज आपने अपने एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम चेक करने के लिए कॉल किया. आपका सिस्टम एक्चुअल में खराब है, तो एटीसी तो यही बोलेगा रीडिंग यू 3. तो आप उसको सीधे थोड़ी क्लोज कर दोगे. You can set something and try again. You can simply say, I say again. ठीक है? Victor Tango, Delhi Tower, Victor Tango, Bravo Charlie Delta, 1 2 3. पूरा मैसेज फिर से. Because he told कि you are at 3. तो मैटर क्लोज नहीं करना है. आपका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब है, तो ठीक करोगे. ठीक है? You cannot leave. So how you'll go? Sir. You'll try one more time. ठीक है? And it happened with me. It was a very fabulous aircraft. बहुत ज़्यादा luxurious aircraft था, where I went for some RT communication during run-up. I'm not a license holder of that aircraft, but it was the luxurious aircraft. Amazing one. There I went for RT. And what I was hearing when I was giving the call, there was a background noise. Every time. I used to feel. And ATC से 5 पे देता था report. So I intentionally asked him, Sir, is there any background noise? Then he told, actually we were reading you at 3 since 4 or 5 times. But I haven't told because you were calling for ground run. ठीक है? तो उसने कहा कि आप ग्राउंड रन के लिए कॉल कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया नहीं. बट यू आर एट 3 एवरी टाइम आई वाज हियरिंग अ नॉइज. आई हैव टोल्ड सर यू कुड हैव टोल्ड हिम कि रीड यू 3. ऐसा क्या हो गया? ठीक है? देन आई हैड चेक्ड डी लिटिल करेक्शन ओवर द SQL and all, and some voice exchange system was there that I had to adjust, and then I called him again. Then he told कि now you are on 5. तो होता है, ऐसा नहीं है कि this is just a readability check. This is a check of your communication system as well. So until unless something is reading you at 4 or 5, don't proceed. Do as many corrections you want. ठीक है? पायलट जहाज छोड़ देते हैं, वापस उधर जाते हैं कि नहीं जाऊंगा, कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट करेक्ट. ठीक है? सो ओनली 4 and 5 आर एक्सेप्टेबल. जब तक ये रीच नहीं करता है,
आप मत करो कॉल। डन। ओके, अनदर स्टेशन, वुड यू लाइक टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक? व्हाट आर दोज? कौन कौन है आज मीटिंग में? प्लीज परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक, whoever is there. See who are there. चलो कोई ना। So today we'll see at chart number 4 for the ICAO location designator, and one by one you need to tell me the location designator for all. So first of all, who is going to tell me about Varanasi? Varanasi, क्या होगा कॉल साइन वाराणसी का ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर में? Victor India Bravo November. वेरी गुड, विक्टर इंडिया ब्रावो नवंबर। व्हाट अबाउट गया? गया का क्या है? It was an exception, right? I have told someday. Try to recall it. It is VEGY. ठीक है, विक्टर एको गोल्फ यांकी। व्हाट अबाउट कोलकाता? Victor Echo Charlie Charlie. वेरी गुड, विक्टर एको चार्ली चार्ली। देन व्हाट अबाउट भोपाल? भोपाल का क्या है? Victor Alpha Bravo Papa. ब्रावो पापा, वेरी गुड। एंड हैदराबाद? Hyderabad, Tango November Sierra, you are working on Hyderabad. Tell me fast. सर राजीव गांधी मतलब आरजीआई के लिए तो वीओएचएस है और सॉरी मतलब ठीक है। एंड And बेगमपेट एयरपोर्ट के लिए वीओएचआई। very good. ठीक है। So over Hyderabad, you need to pay little attention. We'll look at the Bangalore as well. Bangalore में भी same similar type का कांड हो रखा है। What is that? There is two airport in Hyderabad. ठीक है। One is Begumpet. ठीक है। It was an international airport earlier, but nowadays they had made in Samsabad. They are saying, right? So that is in Samsabad. ठीक है। Another one airport, which is also known as Rajiv Gandhi International Airport, जहां पे अभी करेंट टाइम पे कॉमर्शियल ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज VOHS। ठीक है, VOHS, दैट इज करेंट एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद। एंड वन मोर एयरपोर्ट इज देयर, बेगमपेट, दैट इज VOHY। and if you look at the VR code, HIA, this is the VR code for Begumpet, HIA, Hyderabad International Airport. अच्छा, then this is VOHS. ठीक है। So in the exam, if this is coming HIA, you will write VOHS। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपको, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि आपको लोकेशन डेजिग्नेटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली यू नीड टू डिकोड इट। सो इट इज इन रियल VOHS, जो चार्ट पे दिया हुआ है। चार्ट पे HY नहीं दिया हुआ है। ठीक है। Then okay, who is going to tell me about Rajmundry? Rajmundry, somewhere you are saying Rajmundry, क्या हो सकता है? It is very simple. Victor Oscar Romeo Yankee. Very good. Victor Oscar Romeo Yankee. And about Mumbai, Mumbai का क्या है? Victor Alpha Bravo Bravo. Good one. What about Visakhapatnam?
Victor, Oscar, Victor, Zulu. नहीं, echo. In this chart, what I had opened on the screen, it is echo. ठीक है, but I was telling on coming on that only. Visakhapatnam, in some of the chart, you will find in southern FIR. तो वहां पे आपको VO VZ मिलेगा. And on some of the chart, you will find in eastern FIR. तो वहां पे आपको VE VZ लिखना पड़ेगा. तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं. आपको एग्जाम में कोई एक चार्ट ही फॉलो करना पड़ेगा कि चार्ट नंबर 4, चार्ट नंबर 5. देर आर सम क्वेश्चन जहां पे मैक्सिमम 2 चार्ट लगते हैं. ठीक है, 4 and 5, 3 and 4, इस टाइप से. बट फॉर ऑल सच थिंग्स आपका चार्ट फिक्स रहेगा. तो अपने चार्ट पे ध्यान देना है कि अगर ये हमारा ईस्टर्न में है, सो वी विल राइट VE VZ. क्या ही फर्क पड़ता है. अगर ये चेन्नई FIR में है तो वी विल राइट VO VZ. Then anyhow you can simply write VVZ for Visakhapatnam. बना के लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा VR कोड भी लिख सकते हो, राइट. So these are some of the location designator which are exceptionals. But sir, ठीक है. हाँ एग्जाम में ये चार्ट पुराने वाला देंगे या नए वाला देंगे? हाँ, यही तो एक प्रॉब्लम है. आपको स्टेशंस, नाम वाम सब कुछ सिमिलर मिलेगा, चाहे पुराना चार्ट रहे या नया चार्ट रहे. ओनली डिफरेंसेस आर इन अल्टीट्यूड, ठीक है, एंड डिस्टेंस डेटा, बस. और एक दो जगह रूट के अप डाउन है, तो उसमें आप फंसोगे नहीं, चाहे आप पुराना वाला चार्ट यूज करो या नया वाला चार्ट यूज करो. आपको जिस चार्ट पे जो मिले वैसा आंसर कर देना है. ठीक है. सपोज फ्रॉम खजुराहो टू लखनऊ, नए वाले चार्ट में विस्की 41 लिखा है, पिछले वाले में एक और दे दिया विस्की 41, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप अटकोगे नहीं, क्योंकि लॉजिक सेम है. ओके. डन. तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है. बस ध्यान में रखना है अल्टीट्यूड रीडिंग मेथड. नए वाले में अल्फा बाय बीटा के फॉर्मेट में है, ठीक है, A/B. हर जगह आपको अल्टीट्यूड कोसेंट फॉर्म में मिलेगा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में. एंड इन ओल्ड चार्ट इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ बार, लिमिटिंग बार्स, बॉटम बार एंड टॉप बार, like that. And distance you need to calculate by your own. So when we'll go to the examples, we'll learn how to calculate the distance hypothetically. Okay. So we had done chart number 4, and I think this is okay. Good to go ahead for that. So today we are going to see some of the calls which requires Mayday and pan condition, जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है. तो आज हम लोग कुछ इसका प्रैक्टिस देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू गिव द कॉल यूजिंग दीज टू सिग्नल्स. एंड विल आल्सो टेल कि if time permits we'll go to the some further topics as well. Okay. So for that I will need a flight plan. Somebody can give me flight plan using chart number 3 today. Okay. Use the chart number 3 version 2. ठीक है. वर्जन 2 वाला चार्ट नंबर 3 का यूज करिए एंड गिव मी अ प्लान. ठीक है. गो अहेड प्लीज. ब्रावो चार्ली डेल्टा, यू में प्लीज गो अहेड. आपका दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगा. एज यू हैव टोल्ड यस्टरडे, यू विल हैव मोर प्रैक्टिस ओवर दैट. गो अहेड. Okay, sir. Just a minute. डू यू हैव वर्जन 2 चार्ट और ओल्ड वाला है, क्या है? नए वाला ले लिया सर मैंने आज प्रिंट आउट, तो नए वाला है. ठीक है. सर उदयपुर टू दिल्ली.
Okay, start one by one. Udaipur to Take up Delhi, ठीक है. Victor Tango Bravo Charlie Delta. Okay, take this time Akasa Air 178, ठीक है. It won't be Bravo Charlie Delta. It will be Akasa Air 178. Okay, go ahead. Udaipur to Delhi, ठीक है. Udaipur to Delhi. Udaipur Delhi Proceed. flight level 270 with turbulence light ठीक है. low. लो चलेगा. Departure Udaipur. लिखा ना, Arrival. उदयपुर टू दिल्ली लिखा ही हमने. Okay. हाँ. Time 1400. Flight rule I. India. IFR बोलो, IFR. चलेगा. हाँ. IFR. Type of flight schedule. ठीक है. Alternate aerodrome Jodhpur. जोधपुर. No, sir. Jaipur. ठीक है. अल्टरनेट इज Jaipur. जयपुर. रूट है Whiskey 13 South. नहीं, साउथ के थ्रू आप नहीं जा सकते. यू हैव नॉर्दर्न फ्लाइट. और प्लानिंग में ये कंसर्न है, ठीक है. जब आप प्लान कर रहे होते हो तभी आपको ये सोच लेना है कि कौन सा प्रेफरेबल रूट है. एग्जाम में साउथ दे नॉर्थ दे उस पर फिर डाउट नहीं करना है कि ऐसा क्यों दिया. एग्जाम में जो दिया उसी को आंसर कर देना है. एंड आई थिंक माई स्क्रीन मस्ट बी स्टॉप्ड शेयरिंग. स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया ना. Yes, sir. Affirm, sir. Yes. तो नॉर्थ और साउथ में कोई सा भी चूज कर सकते हैं सर, या फिर नॉर्थ चूज करना पड़ेगा? Who is Sierra Alpha Mike? Victor Tango Sierra Alpha Mike. Sierra Alpha Mike, please tell your name. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. Sonia. अच्छा, I forgot. ठीक है. ठीक है. चलो, रूट का क्या है? सर मैं पूछा था ये हम नॉर्थ साउथ क्यों नहीं चूज कर सकते, नॉर्थ ही चूज कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. रिगार्डिंग दैट रूट आई हैव टोल्ड ना कि अगर उस पे लिखा है विस्की 13E, विस्की 13W, विस्की 13 नॉर्थ या विस्की 13 साउथ, so it is recommending for all northern flight choose whiskey 13 north. ठीक है. for all south bound flight choose whiskey 13 south, ताकि ट्रैफिक का हेड टू हेड कोलिजन बचे. ठीक है. सब एक ही फ्लो में फ्लाई करेंगे. ठीक है. 13 नॉर्थ या बब 13 नॉर्थ टिल नहीं, 13 नॉर्थ सीधा. अच्छा देखो, यहीं पे आपको थोड़ा सा कल वाले और आज वाले में समझने की जरूरत है. विस्की 13 नॉर्थ जो है ना, दिस इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम उदयपुर टू दिल्ली. तो कुछ भी नहीं बोलना है, सीधा विस्की 13 नॉर्थ. अगर सपोज उकबाब से चेंज हो रहा होता तब आप बोलते हो विस्की 13 नॉर्थ कुबाब, और मान लो उसके बाद रहता अगर विस्की 24, तो आप यहाँ पे लिखते हो विस्की 24. बट रूट चेंज हो ही नहीं रहा है. उदयपुर से दिल्ली एक ही रूट जा रहा है कंटिन्यूअस. तो रूट इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही रहेगा, विस्की 13 नॉर्थ. क्लियर? ठीक है. वेरी गुड. गो अहेड. अनदर थिंग्स. गो अहेड प्लीज. और कुछ बाकी है बोलना? equipment standard, aircraft type Airbus, any other information nil. Any other information nil. Now tell me which Airbus is of wake turbulence low.
AC-20, लो नहीं है उसका भी, भारी भरकम जहाज है, 7,000 किलो से तो ऊपर ही है, उससे उतना तो फ्यूल लेता होगा। सो moderate, मेक इट मॉडरेट और मीडियम, ठीक है, विक टर्बुलेंस मीडियम, डन, it is Airbus. Okay, now let me look at your plan. You are saying that you are operating Akasa Air 178 at Airbus, ठीक है, from Udaipur to Delhi, time of departure is 1400, flight level 270, wake turbulence medium under IFR, scheduled flight and alternative Jaipur. You are operating through route Whiskey 13 North, all equipments are standard and any other information is nil. Done. Now, do a little change. While writing any other information nil, make it any other information में, ठीक है, any other information में make it VIP on board, ठीक है. So everyone note this plan in your notebook, ठीक है. This is the flight plan along with us, ठीक है. Whatever I had written on the screen, please make a note, and using this only we are going to practice the calls. तो आप लोग फ्लाइट प्लान को अच्छे से नोट करो. If you want, I can read it again so that you can note it rightly. चलो नोट करो सब लोग. Akasa Air 178, Udaipur to Delhi. Time of departure 1400, flight level 270, wake turbulence is medium under flight rule IFR. Scheduled flight and alternate is Jaipur. Route is Whiskey 13 North and all equipments are standard. Airbus is the aircraft type and any other information में लिखा है VIP on board. Go ahead. ठीक है? And once noted, please do let me know. नोट कर लिया सब लोगों ने? Shall I move? Affirm, sir. Okay. So this is the flight plan with us, and yesterday we have seen 3 calls: ground run, taxi, and pushback and startup. So here also today we are going to see using the any other information regarding taxi or pushback clearance. So the question will be, ठीक है, obtain, ठीक है, obtain taxi clearance, ठीक है. Question will be obtain taxi clearance. और हमको ध्यान में क्या रखना है कि we have VIP on board, means we will require that thing is on priority, ठीक है. So how this call can go, have a look. नोट करना सब लोग, जब मैं बोलूंगा आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो. उदयपुर टावर, Akasa Air 178 on 122.3, Airbus 320, wake turbulence medium, IFR Udaipur to Delhi. Current position on apron 3, stand 4. Security check completed. Passenger on board 20. Aircraft ready for departure. Request taxi instructions on priority.
विक्टर टैंगो, करेक्शन, विक्टर टैंगो नहीं है ना आज, Akasa Air 178. Now, have you observed something? In the taxi call, we need to pay attention towards wake turbulence because our engine is going to on. So we have told that we are Akasa Air 178 operating an Airbus with wake turbulence medium, which is IFR from Udaipur to Delhi. Okay? Udaipur to Delhi. VAUD to VIDP. Current position on apron 3, stand 4. Security check completed, passenger on board 20. Aircraft is ready for departure and we will request taxi instructions on priority. अब देखो यहीं पे एक चीज मैंने मिस किया बोलना, I'll tell, ठीक है? Request taxi instructions on priority और साथ में बस एक छोटा सा एडिशनल लगा देना है, VIP on board, बस Akasa Air 178. क्यों चाहिए भैया आपको टैक्सी इंस्ट्रक्शन प्रायोरिटी पे? बिकॉज वी हैव VIP ऑन बोर्ड, ठीक है? रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रायोरिटी, मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, लाइक दैट। तो आपको जिस भी चीज के लिए आपको हेल्प चाहिए, आपको एडिशनल अटेंशन चाहिए ATC का, वो मेंशन कर दो, ठीक है? बिकॉज VIP ऑन बोर्ड, वेयर एज VIP ऑन बोर्ड, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा VIP ऑन बोर्ड, मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड। क्लियर है? So if you have VIP on board, mention it here and mention the word priority. You need taxi instructions on priority. You don't want to be in the queue with someone. आपको priority पे चाहिए क्योंकि VIP है आपके जहाज पे, ठीक है? You don't want to make him delay. यहीं पे अगर रहेगा, sometimes रहता है foreign delegates on board, तो यहीं पे mention करोगे foreign delegates on board, सीधा, foreign delegates on board, VIP on board, मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, इस टाइप से मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, लाइव ऑर्गन ऑन बोर्ड, कई बार आप लाइव ऑर्गन कैरी करते हो, लाइव ऑर्गन ऑन बोर्ड, तो जो भी रीजन है आप मेंशन कर दोगे एक लाइन से, ठीक है? सो दिस इज द कॉल रिगार्डिंग टैक्सी वेयर यू नीड स्पेशल अटेंशन because you have some special person on board. Is it clear? सब लोगों ने नोट किया? ठीक है। Now going to the next question type and that is, ठीक है, that is, हाँ चलो अब हम थोड़ा सा पेन और मेडे सिचुएशन को मिक्स करते हैं कि कैसे उस चीज को रिपोर्ट किया जाएगा। तो पेन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, यू हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्यूएल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। एक तो ये रहेगा क्वेश्चन का मॉडल, और कई बार क्वेश्चन बहुत लेंदी रहेगा। कैसा लिखा रहेगा? यू हैव पार्क्ड एट एप्रॉन, इस टाइप से, यू हैव पार्क्ड एट एप्रॉन एंड ऑब्जर्व्ड फ्यूएल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट पार्क्ड नियर बाय फ्रॉम one of its wings outlet. So your concern, दोनों क्वेश्चन कहना सेम चीज चाह रहा है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन का
इफेक्टिव मीनिंग सेम निकलेगा, मीनिंग सेम नहीं निकलेगा, बिकॉज मीनिंग इज हैविंग मेनी थिंग्स। मीनिंग सेम नहीं रहेगा, बट दोनों का इफेक्टिव मीनिंग सेम रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया चीज बता दिया आपने। मीन्स दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है दैट विल बी सेम, बट आसपास के एसेसरीज बढ़ा दिए। कैसे? यहां पे लिखा है यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। तो जब क्वेश्चन छोटा हो तो आप आंसर करने के लिए फ्री हो, ठीक है। आप अपने आप को कहीं पे पार्क कर लो, जिस एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है वो एयरक्राफ्ट कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो सकता है, कहीं भी पार्क हो सकता है, फ्यूल कहीं से भी लीक हो सकता है, आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जब क्वेश्चन लेंदी रहता है तो वो अपने आप में बहुत सारा इंफॉर्मेशन समेट के रखता है। कैसे? देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिखा है यू हैव ऑब्जर्व्ड, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं टैक्सी कर रहा हूं तब मैंने देखा कि फ्यूल लीक हो रहा है किसी एयरक्राफ्ट से, लेकिन इस क्वेश्चन में यू आर पार्क्ड, आपका पोजीशन पार्क है, आपने देखा फ्यूल लीक हो रहा है आपके एयरक्राफ्ट से जो कि आपके बगल में पार्क है। कहां से हो रहा है? तो विंग के आउटलेट से। तो इसमें तीन चीजों को उन्होंने इम्पोज कर दिया कि जो आपका आंसर आएगा उसमें हमें ये तीन चीजें झलकनी चाहिए। बट जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर कैजुअल हो सकता है, बिल्कुल भी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि विंग से ही लीक हो रहा है। आप बोल सकते हो फ्रॉम द एम्पेनेज सेक्शन, फ्रॉम द टेल सेक्शन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एयरक्राफ्ट, बेली सेक्शन, कहीं से भी। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप बस इतना ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन छोटा आया, ठीक है, तो हो सकता है कि कई बार छोटे क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसका आंसर करने के लिए आप एकदम फ्री हो। आप अपने मन से किसी भी टाइप का हाइपोथेटिकल डाटा यूज करो, किसी भी टाइप का सिनेरियो समझो, आप आंसर कर सकते हो कि आप टैक्सी कर रहे थे, कहीं से फ्यूल लीक हो रहा था, चलेगा। बट अगर क्वेश्चन लेंदी आया है तो समझना तो इजी रहेगा, लेकिन जितने सारे डेटा क्वेश्चन में दिए गए हैं उसमें से एक भी डेटा मिस नहीं होने चाहिए आपके आंसर में। जैसा पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसमें आप सीधा लिख दोगे कि ऑब्जर्व्ड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, चलेगा। बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि लीकिंग फ्रॉम विंग आउटलेट, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑब्जर्व्ड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट थ्रू इट्स विंग आउटलेट, इस टाइप से ये चीज मेंशन करने की जरूरत है। समझ आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन छोटे हैं, समझना कई बार मुश्किल हो सकता है, बट आंसर करने के लिए आप फ्री हो, आप अपने मन से सिनेरियो बना के आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन लंबा है तो उस क्वेश्चन में जितने सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो सारा इंफॉर्मेशन आपके आंसर में दिखना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। क्लियर? ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि जब मैंने एक्सप्लेन करके इतना सब कुछ बता दिया है तो आंसर में क्यों नहीं आ रहा है वो चीज। बट छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला है, यू आर फ्री, कुछ भी आंसर करो, बट एक आइडियल आंसर होना चाहिए, दैट्स ऑल। So how this call can go, have a look. This is fuel leaking from an aircraft. Is it a pan or mayday? Who is going to tell? Analyze you by yourself. क्या हो सकता है? Pen. Pan. Very good. So we'll give answer like that. Pan. Udaipur Tower, Akasa Air 178 on 122.3, Airbus 320, position on apron 3 stand 4, ठीक है, sighted, ठीक है, sighted देखना वाला, SIGHTED, sighted
या फिर कुछ लोग इसको सॉ भी लिखते हैं, सॉ, SAW, सी का प्लूरल, सॉरी वर्ब थर्ड, साइटेड या सॉ या फिर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। बेसिकली हम लोग साइटेड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, कि देखा। साइटेड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन, ठीक है, फ्रॉम एन इंडिगो एयरक्राफ्ट। आप चाहो तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में स्पेसिफिक हो सकते हो कि वो इंडिगो का एयरक्राफ्ट है, ठीक है। फ्रॉम एन इंडिगो एयरक्राफ्ट पार्क्ड एट, ठीक है, स्टैंड 5 एप्रॉन 3, यानी आपके बगल में ही पार्क है, ठीक है। दिस मे बी अ फायर हैजार्ड, वो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, सो योर कंसर्न, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर इसके जहाज से फ्यूल लीक हो रहा है तो आपको क्या दुख है। सो दिस मे बी अ फायर हैजार्ड, ठीक है, आग लग सकती है। दिस मे बी अ फायर हैजार्ड, रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन। ये जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ नहीं है, तो आप ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होगे, आप सीधा बोल दोगे रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन। जो भी आपको एक्शन लेना है एक्शन ले लो, मैंने बस इन्फॉर्म कर दिया। सो हाउ दिस कॉल कैन गो, लेट मी एक्सप्लेन। आपने बोला कि आई एम पार्क्ड एट एप्रोन 3 स्टैंड 4, cited fuel leaking from an Indigo aircraft which is parked at stand 5 apron 3। तो जब भी आप पेन पेन या मेडे कॉल देते हो ना, दो चीज ध्यान में रखना है। एक तो हाईलाइट करो पेन पेन या मेडे को सबसे पहले, और 3 बार बोलना है रिदम में। कुछ लोग बहुत रोबस्ट बोलते हैं तो उसमें भी नंबर कटता है, एग्जामिनर ऑफेंड हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं पेन 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 पेन, नहीं, देयर शैल बी अ रिदम, पेन 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 पेन, इस टाइप से, मेडे मेडे मेडे, ठीक है। तो आप भी जब बोलोगे एक रिदम आना चाहिए, पेन 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 पेन। और सबसे पहले आप ये मेंशन करोगे कि आपका पोजीशन कहां पे है। दूसरा, जो प्रॉब्लम में है या जिसको हेल्प चाहिए उसका पोजीशन कहां है, ठीक है। हेल्प तो चाहिए किसको, तो जिस भी एयरक्राफ्ट को हेल्प चाहिए या जो प्रॉब्लम में है या जो भी सस्पेक्टेड एरिया है उसका पोजीशन किधर है। देन सब्जेक्ट मैटर, ये फायर अलार्म फायर हैजार्ड हो सकता है, आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले लीजिए इस पे, ठीक है। सो 2 थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, एक तो पेन 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 हाईलाइट करना है, अगला दोनों का पोजीशन, अपना भी पोजीशन और जिस एयरक्राफ्ट को हेल्प चाहिए उसका भी पोजीशन। क्लियर? क्लियर है? आंसर समझ में आया एवरीवन? Nobody is saying anything. Bouncer क्या? Is that tough to understand? Nobody is responding. What is happening, guys? Sir. Then give the readback at least. Other stations, what is the scenario? समझ में आ रहा है? Sir, please repeat again. हाँ, तो ये चीज बोलने में शर्माना क्यों है? मैंने पहले दिन बोला था यू हैव पेड द फीस, यू हैव राइट। बताइए क्यों नहीं बता पा रहे हैं? और स्कूल नहीं है कि मैं आपको आके पीट दूंगा। 2 बार तो बता दिया, तीसरी बार नहीं बताऊंगा। होता है बचपन में, टीचर बोल देते हैं कि जितनी बार पूछना है पूछो, 2 बार पूछ दो उतनी में ही वो उनका पारा हाई हो जाता है, फिर वो आके पीट देंगे कि तू सुन नहीं रहे हो सही से, ठीक है। बट दिस सेशन इज नॉट लाइक दैट, यू कैन आस्क एज मेनी टाइम्स यू वांट, ठीक है। दिस इज अ ट्रेनिंग, ये स्कूलिंग नहीं है। द क्वेश्चन टोल्ड कि आपने देखा एक एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, ठीक है। अब आप पैन पैन कॉल दोगे क्योंकि ये आता है पैन पैन की कैटेगरी में। किसी एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक होना इज अ सीरियस कंसर्न, ये एक फायर हैजार्ड हो सकता है, ठीक है, आग लग सकती है इससे।
So first of all, you will give a pen call and you will give your identification. ये आप हो कौन? आप जो pen कॉल दे रहे हो, क्या दे रहे हो? आप हो कौन? So we are Akasa Air 178, Airbus 320 में बैठा हुआ हूँ, ठीक है? And our current position is at apron 3 stand 4. हम लोग अभी स्टैंड 4 पे खड़े हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास स्टैंड 5 पे एक इंडिगो का जहाज खड़ा है जिससे फ्यूल लीक हो रहा है। So cited fuel leaking from an Indigo aircraft. This is optional. If you want, you can mention. If you don't want, skip it. Cited fuel leaking from an aircraft parked at stand 5 or cited fuel leaking from an Indigo aircraft parked at stand 5. Apron 3. यानी हम एप्रोन 3 स्टैंड 4 पे खड़े हैं, वो एप्रोन 3 स्टैंड 5 पे खड़ा है, यानी हमारे बगल में ही खड़ा है, उससे फ्यूल लीक हो रहा है। तो डीजी से पूछेगा ना, हाँ भैया क्या बात है, फ्यूल लीक हो रहा है, होने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, दिस में बी अ फायर हैजार्ड, ठीक है, इससे आग लग सकती है। रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन, आप इसके एवज में एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, ठीक है। आप उधर से क्यूआरटी भेजेगा, उधर से फायर फाइटिंग सर्विसेज भेजेगा, या उधर से सॉ डस्ट लेके आएगा इंडिगो का टेक्नीशियन, जो भी है, दे विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट कंसर्न्ड डायरेक्टली टू अस, हमारे साथ डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमने बोला कि रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन। अगर हमारे साथ होता तो हम स्पेसिफिकली मांगते कि फायर फाइटिंग सर्विसेज भेज दो भैया, ठीक है, क्योंकि आपको अपना कॉज पता रहता है, तो आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मांगोगे। सपोज आप बीमार हो, ठीक है, और बहुत इमरजेंसी हालत में है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि एम्बुलेंस ले आओ और साथ में सेलाइन के 1-2 बोतल ले आना। सेलाइन बोतल क्या होता है कि आपको बेहोशी से इमीडिएट बचाएगा। तो आप स्पेसिफिक कॉज बताते हो कि बीमार है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बट कोई दूसरा बीमार है तो आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आप सीधा बोलोगे एम्बुलेंस ले आओ। सिमिलरली फ्यूल लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है, कुछ नहीं पता है आपको, तो आप बोलोगे रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन, कि जो कुछ भी हो सकता है आप कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है उस एयरक्राफ्ट के साथ में, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज अ पेन कॉल, यू विल सिंपली से रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, पेन के साथ में रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन। गुरु, जब प्रॉब्लम दूसरे के साथ में हो, व्हेन प्रॉब्लम इज विथ अदर्स, जब आपके साथ हो तब तो आपको बताना ही है कि क्या चाहिए स्पेसिफिकली। इज इट क्लियर नाउ? Affirm, sir. ठीक है, सो दिस इज द कॉल यूजिंग पेन एंड यस, ब्रेवो चार्ली डेल्टा, यू कैन क्लियरली सी हियर कि इन दिस कॉल हमने सेक्टर रिपोर्ट IFR दिल्ली टू उदयपुर, उदयपुर टू दिल्ली, ये सब मेंशन नहीं किया, क्योंकि इस कॉल में सेक्टर का कोई कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। Yes. नाउ इसके रिस्पॉन्स में ATC क्या बोलेगा, ATC को जवाब देना पड़ेगा, आपने हेल्प मांगा है। सो ATC विल टेल, ठीक है, हैव अ लुक, आकाशा एयर 178 उदयपुर टावर, ठीक है, वो बोलेगा रॉजर योर पेन, ठीक है, हमने आपके मैसेज को एक्नॉलेज कर लिया है, रॉजर योर पेन, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स टीम एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज आर ऑन द वे, उनको भेज दिया गया, वो लोग रास्ते में है, ठीक है। सो क्विक रिस्पॉन्स टीम एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज आर ऑन द वे, तो आप भी उसके रिस्पॉन्स में क्या बोल दोगे, क्विक रिस्पॉन्स टीम एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज ऑन द वे, आकाशा एयर 178, बस। क्लियर है? Affirm, sir. Another stations, is it clear? सर ये So this is अगर हम एग्जाम में अगर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे QRT
मतलब क्विक चलेगा? रिस्पांस टीम एंड चलेगा, बोलो क्विक रिस्पॉन्स टीम, लिखो QRT, एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और FFS, फायर फाइटिंग सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, FFS, चलेगा? क्लियर? So these are the calls. Sorry, this is the one of the call regarding PAN. Now look, we will look at one more PAN call. ठीक है, one more PAN call. एक बहुत पॉपुलर PAN कॉल है, रिपीट कर ही देता है बार बार, तो चलो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बस क्वेश्चन के कंसर्न को ध्यान से समझना, ये कैसे घुमा रहा है। एंड एज आई टोल्ड, क्वेश्चन जितना लेंदी समझना उतना ही आसान, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपके आंसर में वो सारी चीजें होनी चाहिए। सो देयर इज वन मोर कॉल, विल टॉक ऑन दैट। आप लोग भी कॉल नोट कर लो, इफ यू वांट, क्वेश्चन नोट करो, आंसर्स नोट कर लो फॉर अ सैंपल प्रैक्टिस। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाइल, ठीक है, व्हाइल टैक्सीइंग, ठीक है, व्हाइल टैक्सीइंग you are reaching on adjoining taxiway, एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज, डोंट वरी। adjoining taxiway, cited fuel leaking from an oil tanker, ठीक है, oil tanker moving towards terminal building, moving towards terminal building. So your concern, और लास्ट में लिख देगा कई बार TA मतलब टेक एक्शन, सीधा बात, या फिर कई बार लिख देगा सो योर सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, टेक एक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, समझना बहुत आसान है। आप टैक्सी कर रहे हो और रीचिंग टुवर्ड्स एडजॉइनिंग टैक्सीवे। एडजॉइनिंग टैक्सीवे का क्या मतलब हुआ? सपोज दिस इज टैक्सीवे ब्रेवो, दिस इज टैक्सीवे चार्ली, इसके बाद से यहां से आ गया आपका टैक्सीवे जुलू, लाइक दैट, ठीक है, टैक्सीवे जुलू। तो इसको बोलते हैं एडजॉइनिंग टैक्सीवे, जहां पे दो टैक्सीवे मिल रहे हो। ठीक है, यहां पे आपने देखा कि एक ऑयल टैंकर, यहां पे आप हो, ठीक है, यहां पे आप हो, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। यू आर एट दिस पोजीशन मींस आप सपोज ब्रेवो पे हो, एडजॉइनिंग टैक्सीवे पे पहुंच रहे हो। आपने क्या देखा कि एक ऑयल टैंकर से फ्यूल लीक हो रहा है, जो कि वो ऑयल टैंकर टर्मिनल बिल्डिंग के साइड जा रहा है, यानी सपोज ऑयल टैंकर यहां कहीं घूम रहा है। सो योर कंसर्न, टेक एक्शन। अब आपका पोजीशन उसने डिसाइड कर दिया कि आप हो टैक्सीवे पे, ठीक है, ऑयल टैंकर है टर्मिनल बिल्डिंग के पास, फ्यूल लीक हो रहा है, एक्शन लीजिए। ठीक है, तो हमको अपने आंसर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कराना है। हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। होप एवरीवन हैज नोटेड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट किया सबने? नहीं किया तो आई कीप ऑन। ठीक है, Affirm, sir. ठीक है। सो नोट हाउ द क्वेश्चन आंसर कैन गो, ठीक है, हैव अ क्लोज लुक आउट। This will be Pan or Mayday? Who is going to tell? Pan, sir. Pen. ठीक है, Pan. उदयपुर टावर, Akasa Air 178, Airbus 320, with turbulence medium, currently positioned on correction.
अब देखो हमने क्या बोला, करेक्शन। तो जैसे ही हमने करेक्शन बोला तो जो बोल रहे थे वो कट जाएगा। करेंटली पोजीशन हमने लास्ट में बोला वो कट गया। ठीक है, अच्छा, काइंडली होल्ड फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, वी विल मीट हार्डली एट 2200 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज वन इमरजेंसी कॉल आई नीड टू पिक। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए आप लोग वेट करो, आई विल कॉल बैक एट 2200।
Okay, are we here? सब लोग हैं available? Sorry for a little delay. All are available here? Affirm, sir. Sir, you are not audible. Okay, am I audible now? Affirm, sir. Ready, sir. Okay. So in this scenario, we can see there are many factors which are already given. कि सस्पेक्ट जो व्हीकल है उसका पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है. सो इन योर आंसर इट शुड बी रिफ्लेक्टेड. आप जेनेरिक आंसर नहीं कर सकते हो कि एप्रॉन पे खड़े हैं और हमने ये देख लिया. नहीं, इसमें आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड अपना शिफ्ट करना है आंसर्स. सो हाउ दैट कैन गो, हैव अ लुक. पेन 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 पेन, ठीक है. पेन 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 पेन. उदयपुर टावर. Akasa Air 178. Airbus 320 with turbulence medium. Taxiing on taxiway Charlie. या फिर यहीं पे इस चीज को मत बोलो, सीधा बोलो रीचिंग adjoining taxiway. Adjoining taxiway. Taxiway Charlie and Delta. ये अपने मन से, ठीक है. आप ये भी बोल सकते हो कि करेंटली वी आर एट टैक्सीवे चार्ली. चाहो तो दोनों बोल लो या फिर डायरेक्ट यहीं से शुरू करो. रीचिंग एडजॉइनिंग टैक्सीवे चार्ली एंड डेल्टा. ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं हम वहां पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है. ये हो गया आपका पोजीशन. नाउ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, साइटेड फ्यूल इज लीकिंग. फ्यूल इज लीकिंग फ्रॉम एन. अब यहां पे देखो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो फ्रॉम एन ऑयल टैंकर, या इसके बारे में भी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है. कि फ्रॉम एन IOCL ऑयल टैंकर, फ्रॉम एन BPCL ऑयल टैंकर, लाइक दैट. तो फ्रॉम एन ऑयल टैंकर मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग. वो टैंकर किधर जा रहा है? टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग. This may be a fire hazard. Request appropriate action. Very simple. ठीक है. This may be a fire hazard. Request appropriate action. Akasa Air 178. क्लियर है ये आंसर? बहुत सिंपल है. बस जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया था हमने उसको इंक्लूड कर लिया. अपना पोजीशन ऑन एडजॉइनिंग टैक्सीवे, ऑयल टैंकर का पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, ठीक है. दिस इज द आंसर. इज इट गुड टू अंडरस्टैंड? ठीक है. यस नो एनीथिंग, कुछ तो बोलो. Affirm, sir. So in the response, as usual, ATC will say what? Akasa Air 178, Udaipur Tower. Roger your pen. ठीक है. Quick response team is on the way. आप भी बोल दोगे Quick response team is on the way. Akasa Air 178.
Now, such calls shall ideally goes to ground SMC, लेकिन अहमदाबाद में टावर के छोड़ के दूसरा ATC ही नहीं है. That's why such calls have been by default gone to tower. बट अगर ग्राउंड है तो ये सारे कॉल ग्राउंड को जाएंगे. ठीक है. Is it good to go? बट सर हमको पता कैसे पड़ेगा कि कौन से स्टेशन पे टावर है ग्राउंड नहीं है? वेरी गुड. चार्ट है ना अपने पास, देखो चार्ट. उदयपुर, आपने प्लान क्या बनाया? उदयपुर से जाऊंगा जयपुर. देखो उदयपुर पे क्या है, टावर है खाली. यस सर. ग्रीन कलर में लिखा है ना. FM सर FM. और अहमदाबाद में देखो टावर अप्रोच कंट्रोल. मुंबई में ग्राउंड टावर अप्रोच कंट्रोल. So this is another call of pan. Done? Now, ठीक है. So such things are pan call and we'll look at Mayday as well. बट उससे पहले एक ग्रे जोन का कॉल देख लेते हैं, ग्रे एरिया का. कि चाहो तो पेन दे दो, नहीं भी दोगे तो कुछ बहुत ज्यादा इशू नहीं आने वाला है. लाइक दैट. क्या रहेगा कंसर्न? ठीक है. साइटेड. ठीक है, एक ग्रे जोन का कॉल देख लेते हैं. लिखा रहेगा वाइल टैक्सीइंग, मतलब आप टैक्सी कर रहे हो. अच्छा, हैंडराइटिंग वगैरह कंफर्टेबल है या थोड़ा और अच्छे से लिखूं? चलेगा. वाइल टैक्सीइंग यू हैव साइटेड, ठीक है, birds around a dead body of an animal. Take action. कहां पे वो एनिमल का डेड बॉडी है, कुछ मेंशन नहीं है. आप कहां हो, टैक्सी कर रहे हो, और आपने देखा कि फ्लॉक ऑफ बर्ड है. नाउ ऐसे सिंपल कॉल को ना, क्योंकि कहीं दूर कहीं पे बर्ड मंडरा रहा है, दैट इज नॉट अ कंसर्न. ठीक है. सो यू नीड टू सिंपली डू दैट कि आपको जब फ्लॉक ऑफ बर्ड, ठीक है, रनवे पे मिलते हैं, दैट इज ए कंसर्न कि वो आपके सामने आएंगे तो आपके इंजन में घुस जाएंगे, बर्ड हिट हो जाएगा. लेकिन आप कहीं टैक्सी कर रहे हो, दूर कहीं पे फ्लॉक ऑफ बर्ड किसी एप्रोन एरिया में या कहीं रिमोट एरिया में फ्लॉक ऑफ बर्ड है, दैट इज नॉट अ सीरियस कंसर्न. सो समटाइम्स लोग इसको सिंपल कॉल में दे देते हैं कि रिपोर्ट कर देता हूं ना सिंपली. पेन की क्या जरूरत है इसमें, पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है. तो कुछ लोग इसको सिंपल रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ लोग इसको पेन से रिपोर्ट करते हैं. सो इफ यू आर रिपोर्टिंग इट सिंपली, उदयपुर टावर, ठीक है, आकाशा एयर 178, एयरबस 320. हाँ, इस कॉल में देखो मैं फ्रीक्वेंसी भी मेंशन नहीं कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक ये भी एग्जांपल मिले. अगर एग्जामिनर बोलेगा कि मुझे फ्रीक्वेंसी मत सुनाओ बार बार 122.9 और 122.8, तो नहीं बोलने का. ठीक है, आपकी मर्जी सर. ठीक है. एयरबस 320 विक टर्बुलेंस मीडियम. अगर सर पोजीशन फ्रीक्वेंसी बोलनी होगी तो हम कोई सी भी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? नहीं, जो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा टावर की, चार्ट टावर में. का. हाँ, ओके ओके. ठीक है. पोजीशन ऑन टैक्सीवे चार्ली, sighted flock of bird around a dead body of an animal. क्वेश्चन में कुछ खास नहीं लिखा है, कुत्ता बिल्ली क्या, तो अराउंड अ डेड बॉडी ऑफ एनिमल. ठीक है. नियर या फिर राइट ऑफ, किसी डायरेक्शन में. आप जब कुछ उसको बताओगे ना लैंडमार्क, तो उसके डायरेक्शन में. राइट ऑफ टैक्सीवे चार्ली. अब देखो, आप टैक्सीवे चार्ली पे जा रहे हो, राइट साइड में यहां पे बर्ड मंडरा रहा है.
सो आपको लगा कि ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, चलेगा, तो आप इसको बस रिपोर्ट कर दो आकाशा एयर 178, ठीक है, जाके देख लेगा अपना वो। बट यू मे थिंक कि बर्ड है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उड़ के इंजन की तरफ आ ही गया तो आपको लगा कि ये सीरियस है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, दो चीजों को ऐड कर देना है। क्या? सबसे पहले पेन पेन से रिपोर्ट कर देंगे, पेन 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 पेन, और यहां पे मेंशन कर देना है दिस इज अ सेफ्टी हैजार्ड, ठीक है, दिस इज अ सेफ्टी हैजार्ड, रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन, बस रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन दोनों केस में बोलना था, ठीक है। बट एडिशनली हमने क्या कर दिया, दिस इज अ सेफ्टी हैजार्ड, कि ये एक कंसर्न है हमारे लिए, कहीं हमारे तरफ आ गया तो अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो सेम कॉल थ्रू पेन पेन, अगर आपने इसको सिंपल रिपोर्ट कर दिया, सेफ्टी हैजार्ड नहीं बोला, नॉर्मल कॉल। तो जब भी आप पेन पेन या मेडे बोलते हो, उस पैनिक सिचुएशन के सबूत के लिए, एविडेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखो कि क्यों आपको लगा कि ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। सेफ्टी हैजार्ड है भाई, उड़ के हमारे पास आ गया तो बर्ड हिट हो जाएगा, या फिर नॉर्मल भी ले सकते हो, दूर कहीं मंडरा रहा है पक्षी, हटा देगा, सामने तो नहीं है ना, अभी रिपोर्ट कर देता हूं, आंखें कैंसिल कर देगा, डन। सो दिस इज ओवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पायलट, दोनों आंसर गलत नहीं है, बट पेन पेन किया तो सेफ्टी हैजार्ड बोलना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर ही पूछ लेगा पेन पेन क्यों, पास में बर्ड है, तुमको उससे क्या दिक्कत है, राइट साइड में है, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, तो बोलो सर दिस इज अ सेफ्टी हैजार्ड, प्रॉब्लम कैसे नहीं है। क्लियर है? एनालिसिस हो पा रही है? व्हेन अ ग्रे एरिया कॉल कैन बी मेड, हाँ गो अहेड, बोलो बोलो। हाँ हाँ, यू आर एट 2, गो अहेड। क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, so this is the pen pen call. Now we'll see some of the mayday call. अब mayday call एक सीरियस डिस्ट्रेस नेचर का कॉल है, आपको तुरंत मदद मिलेगा, पर पायलट अपनी बुद्धिमानी भी दिखा सकता है, ठीक है, mayday कॉल में। कैसे? क्वेश्चन आया, अच्छा टेल मी वन थिंग, वाइल टोइंग, जब रैंप पे इंजन स्टार्ट होता है तो आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हो इन शेड्यूल एयरलाइन टोइंग के टाइम पे? ब्रावो चार्ली डेल्टा टेंगो नवंबर सियरा, जब रैंप पे इंजन स्टार्ट करते हो आफ्टर पुश बैक, डू यू गाइस कीप फायर एक्सटिंग्विशर्स देयर? नो सर। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन कैन बी ड्यूरिंग स्टार्टअप, ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्टअप you have observed LH engine on fire, कैसे पता चलेगा? फायर वार्निंग आएगी आपकी कॉकपिट में, okay? आपको ऑब्जर्व हुआ LH इंजन इज ऑन फायर, क्या कॉल जाएगा? अच्छा, नॉन शेड्यूल में तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना पड़ता है बिकॉज यू नीड टू हैव योर ओन अरेंजमेंट। इवन आपके एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है, इंजन फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, स्टिल यू नीड एडिशनल हेल्प, क्योंकि वो जो आग आपने बुझाया, इट डजंट गारंटी कि बाहर की किसी एरिया में इफेक्ट नहीं हुआ है, एंड इमीडिएटली अबव योर इंजन यू हैव फ्यूल टैंक्स, ठीक है। दूसरे जहाजों में नॉन शेड्यूल्ड में तो इंजन्स एम्पेनेज पे होते हैं, ठीक है,
और फ्यूल टैंक विंग्स में होते हैं। तो यहाँ एक बार को फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ओवर द शेड्यूल एयरलाइंस यू हैव फ्यूल्स, ठीक है, ओवर इन द विंग्स एंड एज वेल एज द बेली, बॉटम टैंक्स में। तो यहाँ पे आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो इंजन ऑन करते टाइम आपको फायर वार्निंग दिखा। होता है इग्निशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है ड्यूरिंग इग्निशन। सो हाउ दिस कैन गो, मेडे मेडे मेडे, ठीक है, मेडे मेडे मेडे, उदयपुर टावर, आकाशा एयर 178, एयरबस 320, current position on apron 4, ठीक है, LH इंजन फायर वार्निंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है, या फिर सिंपली से, ठीक है, ऑब्जर्व्ड फायर वार्निंग इन LH इंजन, फायर वार्निंग इन LH इंजन, ठीक है, जिस भी तरह से आपको केस प्रेजेंट करने का मन हो, ठीक है। शटिंग ऑफ द इंजन, शटिंग ऑफ द इंजन, ठीक है, deploying onboard fire extinguisher, deploying onboard fire extinguishers, request fire fighting services, Akasa Air 178। ये हमारे पास जो ऑनबोर्ड है वो तो कर ही दिया हूं, बाहर से भी चाहिए, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, आकाशा एयर 178। तो पायलट ने क्या किया, आपको वार्निंग दिखी, फायर अलार्म दिखा, ठीक है, आपने सबसे पहले इंजन शट ऑफ किया एक, लेकिन इंजन शट ऑफ इजेंट गारंटी की आग बुझ चुका है, तो आपने ऑनबोर्ड फायर एक्सटिंग्विशर डिप्लॉय किया। दिस ऑल्सो लेफ्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम समटाइम्स नॉट सफिशिएंट, ठीक है, कई बार आपको एक ही इंजन पे दो दो बोतल खर्चा कर दोगे फिर भी नहीं बुझता है। देन आपको क्या, एंड स्टिल यू आर ऑन ग्राउंड, सो यू कैन हैव एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, क्या दिक्कत है। रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, आकाशा एयर 178। नाउ इसके रिस्पॉन्स में आपको आंसर कैजुअल नहीं आएगा, दे विल टेल आकाशा एयर 178 उदयपुर टावर, रॉजर योर मेडे, ठीक है, रॉजर योर मेडे, फायर फाइटिंग सर्विसेज विल रीच इन 9 seconds या फिर 02 minutes, इस टाइप में। पिछले वाले में क्या बोला था, ऑन दी वे, कि जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम देगा कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपके पास फायर फाइटिंग सर्विसेज होगा। तो आप भी इसके रिस्पॉन्स में उसी तरह से आंसर करोगे, एक्सपेक्टिंग, ठीक है, एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 02 minutes, आकाशा एयर 178। क्लियर है, डिफरेंस दिखा। पिछले में हमने बोला था रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मांगा हमको सपोर्ट चाहिए भाई फायर फाइटिंग सर्विसेज का, तो उसने भी हमको कैजुअल आंसर नहीं दिया, बिकॉज इट इज अ मेड ए कॉल। उसने बोला कि 1.5 मिनट के अंदर अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर फायर फाइटिंग सर्विसेज आप तक पहुंच जाएगा, तो आप भी उसका वैसा ही आंसर कॉपी करोगे। एक्सपेक्टिंग, पिछले वाले में हमने पढ़ दिया था कि फायर फाइटिंग सर्विसेज ऑन दी वे, लेकिन हेयर एक्सपेक्टिंग, उम्मीद कर रहा हूं कि 2 मिनट के अंदर पहुंच जाए। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यस, नो, एनीथिंग क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो दिस वाज द मेडे कॉल। नाउ विल सी वन मोर मेडे कॉल, जिसमें आपको थोड़ा सा पायलट का एक्टिव माइंडसेट भी देखने को मिलेगा कि नॉट ओनली रिपोर्टिंग एंड डिस्टर्बिंग,
वाई पायलट्स आर नोन एज कैप्टन, कमांडर, क्यों बोला जाता है उनको और क्यों उनका इतना लीड रोल होता है? बिकॉज ऑन एन एयरक्राफ्ट ओनली पायलट्स आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। कुछ भी होगा, आपको पीछे किसी पैसेंजर ने पीट दिया ना, तो भी वो जिम्मेदारी पायलट की है कि आपकी पिटाई नहीं होनी चाहिए ओवर द बोर्ड। आप अगर दो लोग आपस में लड़ गए तो भी ये जिम्मेदारी पायलट की है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आपको खाने में जो देता है, अगर ऑन बोर्ड सपोज केविन क्रू ने आपसे कुछ मिसबिहेव कर लिया, वो भी जिम्मेदारी पायलट की ही है कि आपके साथ मिसबिहेव नहीं होने चाहिए। भले वो काम किसी से करवाए, फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन हेड, जो भी है, उस सबको डांटे कि क्यों बदतमीजी किया मेरे पैसेंजर के साथ, लेकिन हर एक पैसेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट उठाता है। इसलिए कभी अगर आप फ्लाई किए होगे, मैंने तो जब तक आरटी दिया था तब तक कभी एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं किया था, मेरे आरटी के टाइम तक, तो मुझे उस टाइम तक ये सब कुछ उतना ज्यादा नहीं पता था। बट अगर आप लोगों ने फ्लाइट से कभी ट्रेवल किया है तो आपको पता होगा कि एड्रेस करते हैं पायलट हर एक फ्लाइट से पहले कि मैं आपका कैप्टन ये बोल रहा हूँ, जो भी है नाम, हम लोग इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ये सब बोल सकते हैं, और आपका स्वागत है, कोई परेशानी हो आई एम देयर, इस टाइप से वो बोलेंगे आपको। ठीक है? वो आपको एड्रेस करेंगे। तो पायलट की जिम्मेदारी है हर एक चीज की। तो नॉट ओनली रिपोर्टिंग, पायलट्स आर टेकिंग एक्शंस एज वेल। कमांडर है वो, जो सही लगा सब काम करेगा। ठीक है? सो क्वेश्चन इज, while taxiing, और आप एज अ पायलट ही आंसर कर रहे हो, while taxiing you have reported about fire in cabin, केबिन में फायर हुआ है, ये चीज आपको रिपोर्ट किया गया है। कि कौन रिपोर्ट कर सकता है? केबिन क्रू। टेक एक्शन। ठीक है? टेक एक्शन। चलो भाई लेते हैं एक्शन। ठीक है? हाउ दिस कॉल कैन गो, हैव अ लुक। मेडे मेडे मेडे, उदयपुर टावर, Akasa Air 178, Airbus 320, IFR उदयपुर टू दिल्ली। अब देखो, काफी टाइम के बाद हमने सेक्टर रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये एक शेड्यूल एयरलाइन है, और आपको अगर फायर रिपोर्ट या कुछ भी सीरियस होता है ना, अभी आपने सुना होगा जो अहमदाबाद वाला केस हुआ, उसमें आप हमेशा सुनते होगे एयर इंडिया 171 बाउंड टू लंदन, लंदन जाने वाली फ्लाइट, लंदन जाने वाली फ्लाइट, लंदन जाने वाली फ्लाइट। उसका वीटी नंबर क्या था किसी को याद भी नहीं होगा। सबको क्या पता था? एयर इंडिया 171 बाउंड टू लंदन, 171 बाउंड टू लंदन, बाउंड टू लंदन। तो सेक्टर से याद रखा जाता है किसी भी इंसिडेंट को शेड्यूल एयरलाइन में। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रैक्टिस, बट इट शुड बी। IFR उदयपुर टू दिल्ली ऑन टैक्सीवे चार्ली, सीधा, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे चार्ली। ठीक है? इन्फॉर्म्ड या रिपोर्टेड, ठीक है, इन्फॉर्म्ड अबाउट फायर इन केबिन, इन्फॉर्म अबाउट फायर इन केबिन। ठीक है? डिप्लॉइंग एस्केप स्लाइड, अपने मन से कर देगा वो। ठीक है? डिप्लॉइंग एस्केप स्लाइड एंड इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स, अच्छे से समझो इस हर एक स्टेप को। इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स ऑन टैक्सीवे चार्ली, request firefighting services and quick response team, passenger on board 120, Akasa Air 178। क्या किया? नॉट ओनली आपको इन्फॉर्म किया, नॉट ओनली सपोर्ट मांगा, बट एक्शन भी लिया कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करो फटाफट।
तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है इवैक्यूएटिंग पैसेंजर विद द हेल्प ऑफ केबिन क्रू, या फिर along with the cabin crew बोल सकते हो, with the help of cabin crew या फिर along with the cabin crew, वहीं पे निकाल दिया। अब पायलट ये नहीं सोचेगा कि अगर मैं टैक्सी वे चार्ली पे पैसेंजर्स को उतार दूंगा तो दूसरा फ्लाइट डिस्टर्ब होगा, नहीं, जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत ब्रेक मारा, सारा एस्केप स्लाइड डिप्लॉय, बाहर उतरो भाई, ठीक है। तो ये पायलट कर सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ जर्नी पायलट की जिम्मेदारी। उसने क्या किया, स्केप स्लाइड भी डिप्लॉय किया, सबको इवैक्यूएट करवा रहा है। देन आस्क्ड फॉर एडिशनल सपोर्ट एज वेल। इसके रिस्पॉन्स में एटीसी क्या बोलेगा, एटीसी इसके रिस्पॉन्स में बोलेगा आकाशा एयर 178 उदयपुर टावर, रॉजर योर मेडे, ठीक है, रॉजर योर मेडे, कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स, ठीक है, कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स, फायर फाइटिंग सर्विसेज and quick response team will reach in 02 minutes। तो इसमें उसने एक एक्शन दे दिया कि कंटिन्यू रखो इवैक्यूएशन, तो आप बोलोगे रॉजर, ओके, कंटिन्यू है, एक्सपेक्टिंग, ठीक है, एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड क्विक रिस्पॉन्स टीम इन 02 minutes, Akasa Air 178। क्लियर है, समझ में आया? कॉल कॉल कुछ नहीं है, बस एनालिसिस करनी है कि हाउ द कॉल कैन गो, सिंपल। हमको लगा कि फायर सीरियस है कि या फायर इज अ डेफिनेटली इट इज अ सीरियस कंसर्न इन द केबिन, क्योंकि तुरंत आग पकड़ेगी और पता नहीं क्या क्या बर्स्ट होगा, ठीक है। सो डिप्लॉइंग एस्केप स्लाइड्स, तुरंत पैसेंजर्स को बाहर निकाल रहा हूं। अब फायर फाइटिंग सर्विसेज तो चलो आपने बोला कि केबिन का फायर बुझाने के लिए मंगाया होगा, क्यूआरटी क्यों मंगाया, क्योंकि पैसेंजर्स तो बंदर हैं, उनको हमने टैक्सी वे पे उतार दिया, वो जंप करके रनवे की तरफ भाग गए, किसी दूसरे एयरक्राफ्ट की तरफ भाग गए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, आग थोड़ी सी लगेगी और घर से बाहर निकल के भाग जाएंगे, जबकि उसको बुझाया भी जा सकता है, ठीक है। आई हैड इंसिडेंट इन माय होम along with my uncle, जो गैस सिलेंडर होता है उसका नॉब ऑन ही रह गया था एंड ही हैड जस्ट पुल्ड द पाइप और वो फटाक से एलपीजी लीक होने लगा, वो डर के भाग गए। मैं वहीं पे खड़ा था, मैंने जाके नॉब बंद कर दिया। वेरी सिंपल, किया जा सकता है, लेकिन लोग डर जाते हैं। सो इट्स नॉट हिज मिस्टेक, इट इज ह्यूमन नेचर। लोगों को लगेगा भाई आग लग गई, कहीं जहाज ब्लास्ट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। वो पता चला टैक्सी वे से भाग के रनवे की तरफ चले गए या पीछे पीछे भागने लगे, जाके किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के नीचे आ गए, कौन संभाले, ठीक है। डर सबसे बड़ी चीज है, लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लग जाए अगर डर लगे तो, ठीक है। तो पैसेंजर्स को संभालना मुश्किल है, इसके लिए क्यूआरटी भी मंगवा लो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पैसेंजर हमारे पास 100 है, उसके बीच में 4 पुलिस वाले आए, पता चला ये सारे मिलके इसी को उठा लेंगे कि चलो तुम भी भागो हमारे साथ, ठीक है। तो आपको पैसेंजर ऑन बोर्ड, कभी भी सर्च एंड रेस्क्यू या पैसेंजर्स हैंडलिंग की टीम आए तो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड मेंशन करो कि 120 लोग हैं, 4 पुलिस वाले भेजोगे तो पैसेंजर के साथ उनको भी उठा लिया जाएगा। तो कम से कम 50-60 लोगों को भेजो जो कि कंट्रोल कर सके, 120 पैसेंजर्स हैं, ठीक है। तो पायलट अपनी बुद्धिमानी से बहुत सारा काम करता है, इवैक्यूएट करवा रहा हूं, भाग सकता है इधर उधर, क्यूआरटी मंगवा लो, और साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दो कि पैसेंजर हैं कितने, ताकि क्यूआरटी उतने ही आए, नहीं तो पता चला 2 लोग आए, वो बोलेगा तुम भी चलो हमारे साथ, हम लोग भी भाग रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अकॉर्डिंगली क्यूआरटी एंड सपोर्ट विल बी देयर, ठीक है।
समझ में आ रहा है कॉल हाउ दिस कैन गो? बट सर इसमें बिग टर्बुलेंस हमने मेंशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? क्या दिक्कत है? अपना मेन कंसर्न जा रहा है फायर के तरफ, इंजन तो हम बंद करने वाले हैं, ठीक है? एस्केप स्लाइड डिप्लॉय करोगे, इंजन ऑन पे मत कर देना, नहीं तो पैसेंजर सबसे पहले इंजन में ही घुसेंगे, ठीक है? तो इंजन तो बंद हो रहा है। आई थिंक लॉजिक भी है ये, आपने आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट अ एयरलाइनर इंजीनियर। इज देयर एनी, आपने डिप्लॉइंग टेस्ट किया है कभी बेस में, या फंक्शनल चेक किया है? नहीं आई सर। डोंट नो, शायद केबिन टीम करती होगी। देयर इज अ लॉजिक कि इंजन ऑन पे डिप्लॉय नहीं होगा अपना ये हाँ एस्केप तो स्लाइड्स। होगा नहीं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, डोंट मार्क दिस स्टेटमेंट, पूछ लेना अपने इंजीनियर से, बट वहां पे इंजन के साथ डिप्लॉय नहीं होगा, तो इस केस में इंजन का कंसर्न नहीं है, ठीक है? इसलिए वेक टर्बुलेंस मेंशन नहीं किया। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? हम सर। अदर स्टेशंस, व्हाट इज योर स्टेटस, समझ में आ रहा है? Affirm, sir. ठीक है। एक्चुअली आरटी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है? पायलट का रोल, हाँ पायलट का रोल एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको फील करोगे तो, ठीक है? आप रुक जाओ। इधर से होता है। हाँ ठीक है। सो दिस पायलट रोल इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड आरटी इज इवन इंटरेस्टिंग, अगर आप उसको फील करोगे एनालिटिकल वे में, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये सब सोचोगे ना, बहुत इजी पड़ता है आरटी, ट्रस्ट में, ठीक है? और उसी फैक्ट के साथ अगर आप जाओगे एग्जाम देने, एनालिसिस करते हुए, इफ एंड बट सोचते हुए, तो आपका पक्का निकलेगा आरटी। अगर आप सोचोगे कि रट के चला जाऊंगा देने, मां कसम, ठीक है? सॉरी फॉर दैट वर्ड, थोड़ा ज्यादा कैजुअल हो गया, दिट शुड नॉट बी टेल इन द क्लास। अगर आप सोच के चले गए कि रट के एग्जाम दे दूंगा, एनालिटिकल नहीं सोचना है, आंसर देख लूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का ये आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन का ये आंसर, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार जो बोलते हैं ना कि 8 बार दे दिया, ऐसे लोगों को ही 8 अटेम्प्ट लगता है, क्योंकि उसने एनालिसिस की नहीं, और एग्जामिनर वहां पे बैठा ही है आपको उंगली करने के लिए, वो पूछ देगा why you have deployed escape slide, you could have told as a pilot, ठीक है, कि पैसेंजर इवैक्यूएशन इज इंपॉर्टेंट देन रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स, सीधा सा बात। तो बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो जानता है कि वो सही है, बट आपसे पूछेगा क्यों किया, तो पैसेंजर्स को बचाना है, केबिन में फायर है, आग लग गई तो कौन जवाब देगा? तुम्हारा वेट करते रहो 2 मिनट तक, 2 मिनट में तो जहाज साफ हो जाता है, ठीक है? एंड इवैक्यूएशन का टाइम है 90 सेकेंड्स यूनिवर्सल, ठीक है? 90 सेकेंड्स में इवैक्यूएट होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कोई भी इंडस्ट्री, 90 सेकेंड के अंदर अंदर बाहर निकलो, दैट टू बी रिकॉर्डेड टाइम। तो इवैक्यूएशन इंपॉर्टेंट है, तो पायलट को लगा ये जरूरी है, वो कर देगा, और वो पूछेगा नहीं टीसी से कि करूं कि नहीं, करके बताएगा कि कर रहा हूं, नोट कर लो, ठीक है? एनी हाउ, एटीसी इज नॉट आवर कंट्रोलर, दे आर जस्ट अ डिपार्टमेंट विच गिव्स अस सेफ्टी क्लियरेंस, कि आप ये जो करने वाले हो, इससे कुछ दूसरा इफेक्ट होगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो वो परमिशन देंगे, ठीक है? वो ऐसे मना नहीं कर देंगे कि मत करो, उस पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों मना किया गया, हमको होता है। आप एटीसी को अपना कंट्रोलर कभी मत समझना, ठीक है? इन एयरफोर्स वहां पे रहता है एटीसी को, एयरफोर्स में एटीसी को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, और अपने बहुत सारे पायलट एयरफोर्स रिटायर्ड आते हैं, इसलिए हम लोगों का एक हैबिट बनता जाएगा कि एटीसी अपना माई बाप है, बहुत सारे लोगों का रहता है कि एटीसी टॉप पे रखेंगे, लेकिन ये चीज एयरफोर्स या फिर डिफेंस में होता है, जहां पे एटीसी इज योर कंट्रोलर, वो बोलता है कि आप अपना स्पीड 200 नॉट्स रखो, 250 नॉट्स रखो, पायलट ने अगर अप डाउन किया तो उसका पनिशमेंट है कि अगर तुमको एटीसी ने बोला 250 नॉट्स, तो व्हाई यू हैव चूजन 270 नॉट्स। बट इन सिविल ऐसा नहीं है, हम अपना प्लान खुद जान रहे हैं कि हमको कैसे उड़ाना है, तुम बस परमिशन दो,
कैसे उड़ाऊंगा, क्या करना है मुझे पता है। तुम बस ये बताओ कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कोई दूसरा इफेक्ट होगा कि नहीं, बस। ठीक है। सो एटीसी से लड़ाई होती है कई बार। दिस इज नॉट अ केस कि एटीसी आपको मना कर देगा या डांट देगा। तो एग्जामिनर भी तो आपका एटीसी है एग्जाम में। ही इज प्लेइंग एज एन एटीसी, यू आर प्लेइंग एज एन पायलट। वो अगर क्रॉस क्वेश्चन किया, आंसर करो, खत्म। तो वो आंसर आप कब कर पाओगे, जब आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग रहेगी कि क्यों हमने ये एक्शन लिया। नहीं तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, आप चुप हो गए, बस बोलेगा अच्छा रट के आया है, 2 नंबर गए। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, सोचना ऐसा ही है कि क्या क्या कर सकते हैं, करो, और आंसर में उस चीज को हाईलाइट हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, एक्सेप्टेबल। क्लियर? सो दिस वाज अ मेडे Comes कॉल। और मेडे और पेन पेन तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये तो पहले से ही चलता है, ग्रे एरिया का बहुत सारा पोर्शन है। तो पूछेगा मेडे कॉल क्यों दिया, सपोज फायर में ही पूछ दिया मेडे कॉल क्यों दिया, यू हैव टोल्ड सर दिस इज फायर, इमीडिएटली एवरीथिंग विल बी ऐश, अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो। ये जो क्रैश हुआ फायर अहमदाबाद में, कितना सेकंड लगा होगा, सब कुछ तुरंत में राख हो गया। ठीक है। तो फायर के साथ किसी भी टाइप का मजाक नहीं। जहां कहीं फायर दिखे मेडे, ऐसा भी नहीं कि फायर कहीं दूसरे कोने में लगा है मेडे दे दो। आपके एयरक्राफ्ट और आपके पेरिफेरी में अगर फायर है, मेडे। डन। सो दिस वाज अ मेडे कॉल। नाउ इफ यू वांट टू रीड फर्दर, आज मैंने जैसे 4-5 एग्जांपल बताए, आपको अगर और ज्यादा मेडे और पेन पेन के सिचुएशन देखने हैं, उसके आंसर प्रैक्टिस करने हैं, देन ओपन दिस वन, ये वाला नोट ओपन करना। ठीक है। सेशन स्लाइड्स के नाम से जो है, गो टू पेज नंबर, आ गया, हाँ, गो टू पेज नंबर 15 ऑनवर्ड्स, 15 से आप देखोगे आपको पेन पेन और मेडे के कॉल्स मिलेंगे। ठीक है। ना लेट मी शो यू हाउ टू रीड दिस नोट। इसको पढ़ना भी थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं तो आपको शायद समझ में नहीं आए। ठीक है। ये मैंने अपने क्लास, अपने हेल्प के लिए बुलाया था, खुद के हेल्प के लिए, कि मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊं तो मुझे कभी देखने की जरूरत पड़े कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। तो अपने हेल्प के लिए मैंने बनाया था, बट इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ। ओके। सो हाउ टू रीड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ वाइल। ठीक है। जैसे देख लो, पेज नंबर 15 का ही एग्जांपल लेते हैं। जिस भी चार्ट का यूज किया गया रहेगा वो आपको बोल्ड कलर में ऐसे ब्रैकेट में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है। मतलब चार्ट नंबर 1 का यूज किया गया है और प्लान है मुंबई से नागपुर। ठीक है। सो लगभग सारे एयरक्राफ्ट, सॉरी, सारे क्वेश्चन टाइप में आपको कॉर्नर में ये मिलेंगे। चार्ट नंबर 1 का यूज किया गया है, मुंबई से नागपुर का प्लान है। ठीक है। तो फ्लाइट प्लान को मैंने स्पेसिफिकली हर एक पेज पे नहीं लिखा है, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां लिखा भी है। जैसे देखो, चार्ट नंबर 1 यूज किया गया है और मुंबई से नागपुर का प्लान है। अब जो कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो मैंने मेंशन किए हैं, जैसा आपसे मैंने आज पूछा था। ठीक है। एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ डिपार्चर, एयरक्राफ्ट टाइप, वेक्टर टर्बुलेंस, आईएफआर, शेड्यूल एयरलाइनर, दिस इज द रूट मुंबई टू नागपुर, यानी डिपार्चर एरोड्रोम, अराइवल एरोड्रोम, फ्लाइट एल्टीट्यूड, अल्टरनेट। तो ये रहा फ्लाइट प्लान। तो आपको फ्लाइट प्लान और चार्ट हमेशा सारे स्लाइड्स के टॉप पे मिलेंगे। ठीक है, ऊपर में मिलेगा। और जो टेबुलर फॉर्मेट में है, इसमें आंसर्स हैं। ठीक है। ये आंसर है और ये है पॉसिबल रिप्लाई, कि अगर आप ये आंसर करोगे तो एटीसी क्या रिप्लाई दे सकता है। सो दैट इज रिटन इन द राइट साइड। इसके बदले में क्या जवाब आएगा, उसके बदले में क्या जवाब आएगा। नाउ क्वेश्चंस यू विल बी फाइंड इन अ सिंगल पैराग्राफ, बट देयर इज अ डिफरेंशिएशन। देखो, यहाँ पे छोटे से 1 लिखा हुआ है ना रेड कलर में, इसका मतलब कि यहां से यहां तक है क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू लीकिंग फ्रॉम एन ऑयल टैंकर, टेक appropriate एक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, ए व्हीकल हिट द एयरक्राफ्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का एंड। थर्ड,
थर्ड का क्वेश्चन का आंसर क्या, थर्ड का क्वेश्चन क्या है, एयरक्राफ्ट टैक्सिंग विदाउट नैव लाइट ऑन। चौथा क्वेश्चन क्या है, लीकिंग फ्यूल फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यू हैविंग ब्रेक शॉट इंडिकेशन व्हाइल टैक्सी। तो ऊपर हो गए क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन के एंड में टॉप पे छोटा सा नंबर लिखा रहेगा रेड कलर में, और लेफ्ट साइड में उसी का आंसर लिखा हुआ है। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। और सीक्वेंसली नहीं बढ़ जाना कि एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, नहीं, जहां पे जो है वो लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अगर कुछ चीजें कॉमन है तो उसको मैंने बार बार नहीं लिखा है, एज मैंने बताया आपको, ये मेरे हेल्प के लिए था, आपके लिए नहीं था कि आप लोग इसमें क्वेश्चन उठाने लग जाओ कि सर आपने इसमें ये क्यों नहीं लिखा, पेन 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 पेन। ये मैंने अपने लिए बनाया था, ये मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने का मन हो तो थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी क्लास के लेक्चर एनफ है, ठीक है। और प्रैक्टिस जैसा करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, ठीक है, सारे क्वेश्चन के लिए। तो जो चीजें कॉमन है वो मैंने एक ही बार लिख दिया, बाकी सीधे मुद्दा डिस्कस किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन रीड आउट कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या आंसर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या आंसर होगा, और उसके क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर थोड़ा और पढ़ने का मन करे अदर देन क्लास, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हाउएवर मैंने जो क्लास में बताया, ये जो सैंपल आपको 4-4 एग्जाम्पल करवाए, अगर उसी को आपने अच्छे से समझ लिया तो कल को जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट समटाइम्स होता है कि कई बार क्लास के लेक्चर कुछ स्टूडेंट्स को इनसफिशियंट पड़ जाते हैं, उनको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। दिस नोट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड थ्रू ड्राइव लिंक। डन। So this is it regarding your practicing and going forward for more calls if you want. आप लोग वहां से देखो, प्रैक्टिस करो, और अगर किसी टाइप का डाउट आए प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नया टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग पेन पेन एंड मेडे। अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स रहा तो अगला टॉपिक चालू करूंगा, ठीक है। और बंक नहीं मारोगे कोई, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, हेजिटेट मत करना कभी भी क्लास में आंसर देने से, ठीक है। थोड़ी सी, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने पर्सनली जब उन्होंने फीडबैक दिया, जब मैंने उनको सजेस्ट किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैंने ये लैप्स देखा है, दिमाग तेज है, आता सब कुछ है, प्रैक्टिस नहीं किए, फेल हुए, ठीक है। एंड दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल। तो जब मैं क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग आंसर देने में बिल्कुल मत हिचको, ठीक है। मैं बार बार नोटिस कर रहा हूं, आपसे जब पूछता हूं, समटाइम्स यू आर ऑफ साइट, समटाइम्स यू आर ऑफ द स्क्रीन, पीछे क्या करते हो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आप लोगों का कई बार रिस्पॉन्स लेट आता है, यस नो में आंसर नहीं करते हो, नो, ठीक है। दिस में टेक टू सम सीरियस इशू लेटर ऑन, ठीक है। सो डोंट डू दैट, एक्टिव रहो, और क्लास में जब क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोग आंसर करो, ठीक है। रीडेबिलिटी चेक आज भी कोई नहीं कर रहा है, आज तक नहीं कर पा रहा है कोई, क्यों क्यों शर्माना है। मैं बोलता हूँ रीडेबिलिटी चेक कर दो, तब जाके करते हो, नहीं, स्टार्ट करो, फटाक से बोलना शुरू करो कि सर रीडेबिलिटी चेक कर रहा हूं, करो, क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने हेजिटेशन को तोड़ोगे नहीं, तब तक आपसे मिस्टेक होता रहेगा, ठीक है। और ये आपको अंदर ही अंदर लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं आता है, ट्रस्ट में। आपको लगेगा कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन आपसे नहीं होगा। दैट इज द फैक्ट अबाउट आरटी। बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लगता है अरे ये तो सिंपल है, हो जाएगा, नहीं होता है, ठीक है। सो आई डोंट से कि एग्जाम इज वेरी टफ, बट यू कैन नॉट गो अनप्रिपेयर्ड। आपको प्रैक्टिस करके जाना है, प्रिपरेशन करके जाना है। तो कल जब क्वेश्चन आंसर करूंगा आप लोग पार्टिसिपेट करना आंसर के लिए, क्लास बंक मत मारना, और आंसर देने में भी हेजिटेट मत करना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, मेरे से मिस्टेक होता है अभी तक,
जबकि 3 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग पार्टिसिपेट करना, आंसर करना, सो दैट आई कैन रियली एनालाइज हाउ मच स्ट्रेंथ यू आर गेनिंग इन आरटी। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो सेम 9 o'clock। बाय बाय, गुड नाइट। Okay, sir. ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।